Hello everyone. In this video, I am going to explain the story A Letter to God written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट थे। ये CBSE की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की, उसकी फर्स्ट स्टोरी है। It is a really interesting story with a really unexpected ending. This is a story of faith and irony. फेथ का मतलब होता है विश्वास। लेंचो भगवान में बहुत विश्वास करता है, तो उसके ऊपर है ये स्टोरी। एंड द सेकेंड थिंग इज आयरनी। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज आयरॉनिकल, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। आयरॉनिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एंडिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आयरॉनिकल का मतलब जो आपने सोचा है उसका ऑपोजिट हो जाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी को। Lencho's was the only house on the top of a low hill in the valley. अकेला ही मकान था, वहां से he could see the fields. उसने अपने खेतों में एक कॉर्न बो रखा था। फसल तैयार होने में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था, but they needed rainfall. They needed downpour or at least shower. Downpour का मतलब होता है बहुत तेज बारिश, शावर मतलब हल्की बारिश। सो दे नीडेड रेनफॉल। ही सॉ, सुबह से वो उस दिन देख रहा था, देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ही सेड टू द वुमन, अब ऐसे मतलब हम ये मान के चलते हैं कि द वुमन इज हिज वाइफ। ही सेड टू द वुमन, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन टुडे। The woman said, yes, God willing. मतलब अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। Now, the elder boys were working in the fields and the younger ones were playing outside. The woman called them to have dinner. जब लेंचो और सब लोग खाना खा रहे थे, तो it started raining as Lencho had expected. Lencho was really happy. वो एकदम से घर के बाहर गया so that he could feel the drops of rain on his body. और उसने बोला कि these are not just drops of rains, these are new coins. The bigger drops are coins of 10 cents, whereas the smaller ones are 5 cents. Now why does he call the raindrops as coins? क्योंकि बारिश होगी, फसल तैयार होगी, उससे उसकी इनकम होगी। तो जब बारिश हो रही थी, all of a sudden, a very fast wind started blowing. The weather became stormy. और बारिश के साथ साथ hail storm शुरू हो गया। Hail storm का मतलब क्या होता है? ओले। ओले गिरने लग गए। Now he was sad. Lencho was sad. लेकिन जो छोटे बच्चे थे, they were happy. They called these hails as frozen pearls. मोती जैसे दिख रहे थे, beautiful थे। But of course Lencho was sad क्योंकि उससे फसल को नुकसान होने वाला था। He prayed to God that it didn't last long, but that didn't happen. By the time the hailstorm was over, his field was completely covered in white, just like salt. Now, Lencho was very sad. फसल एकदम नष्ट हो चुकी थी और उसे ये लग रहा था कि इस साल उसे खाने के लिए और कुछ मिलने वाला नहीं था, बिकॉज ही हैड नो मनी व्हाटसोएवर। सो लेंचो को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे ये लग रहा था कि हिज फैमिली विल डाई ऑफ हंगर, बट एट द सेम टाइम उसके मन में एक विश्वास था। देयर वॉज वन होप एंड दैट वॉज गॉड। He felt that Lencho felt that nobody died because of hunger and he should seek help from God. So he decided to write one letter to God. Now this is something interesting. And for him, writing a letter to God was quite natural. उसे इसमें कुछ भी unnatural नहीं लग रहा था। आपको और मुझे बोले कि चलो भगवान को एक लेटर लिखो तो हम हंसेंगे, हैं? भगवान को लेटर लिख रहे हैं, उसमें भगवान को लेटर का जवाब देंगे क्या? But he was confident. उसे एकदम natural लग रहा था। So he wrote a letter to God. और उस लेटर में उसने ये लिखा कि Dear God, my crop has been destroyed because of hails and इस साल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. So I request you to send me 100 pesos.
Now peso is the currency in Latin American countries. So वो गॉड को बोलता है कि if you send me 100 pesos, I can sow seeds once again and my family will not starve to death. उसने ये लेटर लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया. Now वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज में से एक पर्सन who was a postman, he opened the mail box and he found the letter. He started laughing very loudly. Now this was something unprecedented. Unprecedented मतलब पहले कभी नहीं हुआ था. The postman had never seen anyone write a letter to God. So वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था. He went to the postmaster. He was an amiable person. Amiable मतलब friendly, nice. Postmaster was a good person. He also started laughing very loudly. But soon he became serious. He felt कि यार किसी इंसान का भगवान में इतना विश्वास है, उसने लेटर लिखा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. So the postmaster decided to give one fraction of his salary. और उसने अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट की कि थोड़े थोड़े पैसे सब लोग मिलाओ. सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए. दो दे कुड नॉट कलेक्ट 100 pesos, लेकिन हाँ उन लोगों ने 70 pesos इकट्ठे कर लिए. सो दे रोट अ लेटर और उसमें सिर्फ एक ही सिग्नेचर किया हुआ था, गॉड, एंड दे केप्ट द मनी इन इट. नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस. उसका विश्वास देखिए, फेथ देखिए. उसने भगवान को लेटर लिखा था और उसे पता था कि भगवान रिप्लाई भी करेंगे. सो ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस गेव हिम द लेटर. He opened it and he saw 70 pesos in it. Lencho was slightly confused. He had asked for 100 pesos and God could not make a mistake. भगवान से गलती तो हो नहीं सकती कि 100 की जगह 70 pesos भेजे. And at the same time मुझे ये भी लग रहा था कि यार मैंने 100 मांगे हैं तो भगवान 100 ही देंगे. So he decided to write a letter back to God. उसने वहीं पोस्ट ऑफिस से पेन और पेपर लिया एंड ही स्टार्टेड राइटिंग. ही पोस्टेड द लेटर. ही ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स. नाउ द पोस्ट मास्टर टुक अ लेटर एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही रेड इट. उसमें लेंचो ने क्या लिखा था? डियर गॉड, मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे, आपने तो पूरे भेजे थे, लेकिन मुझे 70 ही मिले हैं, 30 बीच में नहीं मिले हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसे पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए हैं. सो प्लीज आप बाकी के बचे हुए 30 pesos भी भेज दीजिए, लेकिन हाँ, डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज द पीपल हियर आर क्रूक्स. क्रूक्स मीन्स बैड पीपल. सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स. देखिए दोस्तों, द आयरनी हियर इज, जो पोस्ट मास्टर था वो एक अच्छा इंसान था. उसने अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलकर पैसे कलेक्ट किए थे. 100 pesos वो कलेक्ट नहीं कर पाया, बट उसने 70 pesos कलेक्ट किए लेंचो के लिए, और वो लेंचो उन्हीं को बेकार इंसान बोलने लग गया. उसके मन में तो ये आया होगा ना कि यार मैंने इसकी मदद करने के लिए भगवान के नाम पे हमने पैसे दिए और ये हमको बेकार इंसान बोल रहा है. सो द एंडिंग इज सरप्राइजिंग. इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल टू दी पोस्ट मास्टर, हालांकि लेंचो को ये नहीं पता था कि पोस्ट मास्टर ने भेजा है, बट द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉइज हैड एक्सपेक्टेड दैट लेंचो वुड बी थैंकफुल टू देम, बट ही वाज नॉट थैंकफुल. इन फैक्ट ही ब्लेम्ड देम कि इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, मेरे पैसे निकाल लिए हैं. सो this was the summary of the story. If you have understood the story, you would be able to answer the questions from this chapter. In the end, I just want to make one important point. Dear students, you must be really good at English. इंग्लिश में स्कोर करना बहुत इजी होता है अगर आपने स्टोरी पढ़ ली है या वीडियो देख के आप समझ गए हैं. सो यू नो द स्टोरी इनसाइड आउट. अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, सो यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. इंग्लिश सीखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, कीप रीडिंग स्टोरी बुक्स. गुड बाय.